Hey guys, in this video we'll discuss the chapter 3 of NCRT class 11 physical geography. This video will be oriented toward UPSC prelims and mains. So let's start. So I'm starting with chapter 3 because chapter 1 and 2 are not relevant to exam. You are free to read it, but it's not relevant to exam. Okay, let's start. So the chapter is interior of the earth. So in this chapter will basically develop the understanding of interior of the earth, how we get this information, and what is the structure of the earth, right? So starting with this, the configuration of the earth. Let me point it out. Okay, the configuration of the surface of the earth is a largely product of process operating in interior of the earth. Exogenic and endogenic processes are constantly shaping the landscape. So exogenic forces and endogenic process are the two types of processes that shape the earth as we see it. तो मतलब क्या है, exogenic forces are the forces which operate from the outside of the earth's surface, right? Endogenic forces are the forces that act inside the earth's surface. So these two forces we will discuss in the next two chapter. We just अभी हमें इतना ही जानना है कि what is exogenic. So like wind shapes the earth's surface. It's an exogenic. Endogenic is like let's say lava, right? Magma. Okay, moving on. So, a proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effect of endogenic process are ignored. So, we basically need to know the internal structure and the processes of the earth to know about any geography, right? Okay, let's. So, this paragraph basically बता रहा है कितना important है ये जानना. Okay, now the sources of information. So, the Earth surface, Earth radius is around 6400 kilometer. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना दूर है. बेसिकली पूरे इंडिया का आई वुड से एंड टू एंड डिस्टेंस इज़ अराउंड 3200 एंड सो इट्स द डबल ऑफ दैट, right? So basically the direct information, there are two kinds of information basically we get about earth. One is direct and other is indirect. So let's see. So what are the direct sources? So direct sources can be a mine. So here it is a gold mine. So when we dig the gold mine, so let's say in South Africa, there are mines as deep as 3 or 4 kilometers. So the rocks we get from there, the pressure from there, the temperature at which the rocks were present. So these kinds of information gives like lot of details about the structure. Also the deep ocean drillings, which can be like 10 to 12 kilometer deep, also give information about this composition, structure, temperature, pressure, everything. And there's a place in, I think, Russia, where there was a project just to know about the interior of the earth. So they drilled a hole and the maximum they could reach was 12 kilometer. After that, their equipments, the temperature was so hot that their equipment kept failing. So this is the maximum we could dug so far, 12 kilometer, right? Another source is volcanic eruption. तो जब volcanic eruption होता है बेसिकली, तो जो लावा होता है, आप पढ़ेंगे कि लावा comes from the internal sources in the earth. When the lava comes outside the earth, from examining this lava, we can get idea about the internal sources of the earth, right? There are two words here. There's a one lava, there's another is magma. So when when the magma is inside the earth's surface, it is called magma. But when it reaches the surface of the earth, it is called lava. So that's the only difference. Okay, so we have read about two sources. First is mining. Second is volcanic eruption. That's okay. So as I said earlier कि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, राइट? और मैक्सिमम वी हैव गॉन इन इज 12 किलोमीटर. 1% भी नहीं गए हैं. सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इज फ्रॉम द इनडायरेक्ट सोर्सेज, राइट? हम डायरेक्टली वहाँ जाके एग्जामिन नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट सोर्सेज से हमें पता है अर्थ के बारे में. सो लेट्स सी द इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द अर्थ. So what do we know from the indirect sources? We know the temperature, we know the pressure, density of the material, and the composition of the material. Let's see how. So one source is meteor. So how meteor is a indirect source?
सो हुआ क्या था, इनिशियली जब प्लैनेट बने थे, so there were some meteors which were in the solar system. So these meteors, they were created at the time the planet Earth was created. So they kind of represents the internal structure of the Earth, internal composition of the Earth. क्योंकि they were made from the same material और उन पे कोई environment नहीं था, because they were in the space, right? Space has no environment, so they did not had the disturbance. They were kind of like kept in a museum, so they were not eroded, so we can study them and get the idea about the our Earth. So that's how meteors can be a good source of earth like interior of the Earth. Okay, moving on. Other indirect sources are gravitation, magnetic field, and seismic activities, right? How gravitation can be a source of information. So we know from class 11 or 12 that G is equal to gm 2 by r square, right? So this r, so basically gravitational force at any time, any point, depends upon the mass and the distance. So that can be used to calculate the density and the depth inside the Earth. And magnetic field, so basically the interior of the Earth has a lot of I would say ferrimagnetic elements, जिसके सर्कुलेशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को नाप के हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं. साइज्मिक एक्टिविटी विल सी इन दी जस्ट कि साइज्मिक एक्टिविटी से कैसे निकाल सकते हैं. ओके, लेट्स सी. It is the gravitational force is not same in different latitudes on the surface. It is greater near the poles, less at the equator. So let's see कि कैसे greater in the poles है. So Earth kind of ऐसा है, मैं थोड़ा बढ़ा के बना रहा हूँ, but it's bulging in at the equator. So when it's bulging at the equator, the R is more, right? R1, and at the pole R2. So R1 is greater than R2. सो होता क्या है कि लेट्स सी यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू देखें, सो ग्रेटर दी R, यहाँ स्क्वायर होगा. सो R1 इज R1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन R2 स्क्वायर, तो G1 will be less than G2, and that's why gravity at the pole is more than the gravity at the equator. Moving on. The magnetic survey also provides information about the distribution of magnetic material in the crustal portion, and thus provide information about the distribution of material in this part, right? So suppose हमें किसी एरिया के वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है, तो हमें पता चल जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर में वहाँ आयरन या निकल प्रेजेंट है नहीं, बिकॉज आयरन एंड निकल आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी व्हाट यू कॉल magnetic field in the Earth. Seismic activity is one of the most important sources of the information about the interior of the Earth. So अभी तक हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी indirect sources की. Let's recap it. We learned about meteors. Because of the same origin, they can give information about the Earth. Earthquake, we have learned about gravitational field, magnetic field, seismic activity. So as इसमें कहा गया कि seismic activity is the most important source, and let's see why it is the most important source. So earthquake, we all know earthquake is sudden release of energy in the interior of the Earth which causes shaking of the Earth. Okay, so these are all the points about the earthquake. It's very simple. There are 2 points here I want to say. So the earthquake originates inside the Earth. It's just inside the Earth, and the point of release of energy is called focus. So it is a focus, and the point just above in the surface, just above the focus, is called hypocenter. That's it. There are two, and it is also called epicenter. Hypocenter. Okay. Sorry. Let's just recap. Sorry. So थोड़ा मैंने इसको उल्टा पढ़ा दिया है. Basically, the point where the energy is released is called the focus of the earthquake. Alternatively, it is called hypocenter. So basically, अर्थ के जस्ट सरफेस के जस्ट अंदर, बेसिकली ऐसे देख सकते हैं, सरफेस के जस्ट अंदर जो पॉइंट होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है एक्चुअली,
उसे हम फोकस कहते हैं, और इसी को हम हाइपोसेंटर कहते हैं, राइट। और इसी फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट सरफेस पे होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। ओके, नाउ कमिंग टू अर्थक्वेक वेव। सो जो अर्थक्वेक आते हैं हमारे पास, दे कम इन फॉर्म ऑफ वेव, दीज आर मैकेनिकल वेव, राइट। ऑल द अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, विल नो जस्ट अबाउट आफ्टर दिस पार्ट। लिथोस्फीयर इज अ upper we can say upper part of the earth where the earthquake originate. They can be up to 200 kilometer, right? उसके नीचे earthquake नहीं आते हैं, and we can understand the reason, क्योंकि earthquake आते हैं basically in brittle things, है ना। और the earth का जो upper part होता है वो brittle होता है, उसके नीचे वाला part plastic होता है। जब plastic को हम compress करेंगे या elongate करेंगे, it doesn't break suddenly, so the earthquake नहीं आता, right? Okay, let's learn about the earthquake wave. So earthquake wave can be basically can be of two type, a body and the surface wave. So what's the body wave? So the body wave is the wave which is generated at the focus of the earthquake. So हमने अभी देखा था कि अर्थ, लेट्स से यहाँ बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से अर्थ की सरफेस यहाँ पे है और उससे 100 किलोमीटर डेप्थ पे जो फोकस है यहाँ पे अर्थक्वेक आया, राइट। तो यहाँ से बॉडी वेव प्रोड्यूस हुई होगी, राइट। ये बॉडी वेव ट्रेवल करते करते हर जगह जाती है, दिस बॉडी वेव गोज़ एवरीवेयर। जो वेव बॉडी वेव सरफेस पे आती है, जब ये सरफेस से टकराती है, दिस प्रोड्यूसेस अनदर काइंड ऑफ वेव एंड दिस इज़ कॉल्ड सरफेस वेव। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, is called surface wave. So हमने दो kind of wave जान ली, body wave and surface wave. So let's study about it. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction traveling through body of the earth. Hence the name, the body wave. The body wave interact with the surface rocks and generate new sets of wave, surface wave, जैसा हमने discuss किया. These waves move along the surface and the velocity of wave changes as they travel through material with different densities. The denser the material, the higher the velocity. Their direction also changes as they reflect and refract. So basically ये कह रहा है कि the speed, the velocity of the wave, both body wave और surface wave, दोनों की velocity depends on density. So अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि अर्थ के जो लेयर्स होती हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, उसके कारण उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो उन डेंसिटीज़ में जब वेव्स जाती है तो उनकी वेलोसिटीज़ चेंज होती हैं। और जो ये वेव्स होती हैं ना, दे आर सिमिलर, दे आर मैकेनिकल वेव एंड दे हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ दैट लाइक एनी अदर वेव्स हैव। सो दे कैन रिफ्रैक्ट, दे कैन रिफ्लेक्ट ऑल्सो, राइट। दिस इज़ दी सिम्प्लीफाइड I would say seismograph of the earthquake. The body waves are of two kind, P wave and S wave. So body wave दो तरह की होती हैं basically, P wave, S wave. The P wave, that is the primary wave, right? S is secondary wave. So which arrives first at the given point, it's the primary wave. That's why it's primary, and secondary after primary, right? There are two types of body wave, the P and S wave. P moves faster and are first to arrive at the surface. These are called primary wave. The P waves are similar to sound wave and they travel through gases, liquids and solids. The S wave arrive at the surface at some time lag and these are called secondary waves, as the S wave is that they can travel only through solid material, and this characteristic of the S wave is quite important and it has helped scientists to understand the structure of the earth, of the interior of the earth, right? तो इसमें बोला क्या है कि बेसिकली बॉडी वेव्स टू काइंड ऑफ होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव और एक होती है सेकेंडरी वेव। तो होता क्या है कि लेट्स से यहाँ पे फिर से आए, बॉडी वेव दो काइंड की होती हैं, एक पी और एक एस, ठीक है। पी पहले आती है, एस बाद में आती है। तो फास्टर कौन सी हुई? पी वेव, बिकॉज दे ऑब्वियसली जो जल्दी आ रही है बेसिकली आ कहाँ रही है? सरफेस के किसी एक पॉइंट पे। अनदर प्रॉपर्टी, अनदर डिफरेंस कहना चाहिए कि पी वेव इज़ लाइक अ साउंड वेव। पी वेव
साउंड वेव, इसका मतलब क्या है? जब साउंड वेव, जब हम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जो कहना चाहिए जो साउंड बॉक्स है जो मेरे गले में, दीज आर प्रोड्यूसिंग वेव्स. सो व्हाट दिस इज़ डूइंग इज, एयर है ना, एयर में ये ऐसे बेसिकली क्या कर रहा है कि एक डेंस और ये रेयर, डेंस, रेयर, डेंस, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही. वेव्स किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ कम है, यहाँ कम, राइट. और यही वेव्स हमारे ईयर्स रिसीव करते हैं और दे इंटरप्रेट इट एज साउंड, वॉइस. ठीक है. तो पी वेव्स, देखो वेव्स होती क्या है? वेव्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रेवल. ठीक है ना. एक एनर्जी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है उसे हम वेव कहते हैं. वो दो तरह से जा सकती है. उसमें जो साउंड वाली वेव होती है, जो कहना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं जिससे वेव जा रही है, इसमें बेसिकली साउंड लाइक फीचर होते हैं. साउंड लाइक फीचर होना क्या होता है? इसमें डेंस, रेयर, डेंस वो वेव्स क्रिएट होती हैं. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो साउंड के मीडियम होते हैं आपस में कंप्रेस हो जाते हैं एक जगह पे और दूसरी जगह पे ये स्ट्रेच हो जाते हैं, लाइक साउंड वेव डज. पीपल इन साइंस वुड लाइक more easily understand this, but that's all we want to know, right? सेकेंडरी वेव में होता क्या है? लेट्स से सेकेंडरी वेव दैट इज एस वेव. इसमें क्या होता है? इसमें अगेन एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, बट दिस टाइम जो मीडियम होते हैं उसके पार्टिकल एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे होते हैं जैसे इसमें कर रहे होते हैं इधर से इधर को. इसमें बेसिकली क्या होता है? मीडियम और पार्टिकल जो वेव की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर जा रहे होते हैं. इसका मतलब क्या है? लेट्स सी वेव को यहाँ से यहाँ जाना है. ठीक है. मतलब एनर्जी को यहाँ से यहाँ जाना है, बट जो मीडियम का ये पार्टिकल है, लेट्स से ब्लू से दिखाता हूँ, जो ये मीडियम का पार्टिकल है जिसके थ्रू एनर्जी जानी है, ये एस वेव में इसका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, दैट इज़ इस ऐसे. उसके नेक्स्ट वाले का भी ऐसे होगा, उसके नेक्स्ट वाले का भी ऐसे होगा. तो इसमें जो इसका डिस्टर्बेंस होगा उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. पर लॉन्गिट्यूड में अगर इन दोनों पॉइंट के बीच वेव जाना है तो ये जो मीडियम का पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड में होगा. दैट्स इट. और ये लाइट वेव जैसी होती है और इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं जैसे इसको समराइज़ कर रहा था, राइट. और मैं अब इसी को रीड कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ. वन मोर इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे देख, द प्राइमरी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव, दे कैन ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड, सॉलिड. सो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दी साइज्मिक वेव्स और अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. नाउ वी आर स्टडिंग वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो होता क्या है? जो दो वेव हैं पी एंड एस, उनमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो पी वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, बट जो एस वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, राइट. ओके. नाउ हो क्या रहा है कि जब हम सीज़मोग्राफ से किसी भी अर्थ के पॉइंट में नापते हैं तो हमें बेसिकली पी और एस वेव की इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन से हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हम अर्थक्वेक को नाप रहे हैं किसी पॉइंट पे, लेट्स से इसी यहाँ पे हम नाप रहे हैं, यहाँ पे हमारा साइज़मोग्राफ बन रहा है और यहाँ पे पी वेव तो आ रही है बट एस वेव नहीं आ रही है. पी वेव आ रही है और एस वेव नहीं आ रही. इसका मतलब क्या है कि वेव के इस पाथ में कहीं पे लिक्विड आया होगा, राइट. दैट्स वाई एस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड और पी आया होगा और प्राइमरी वेव आ गई होगी. सो बाय दैट्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बट दिस इंफॉर्मेशन, दिस डिफरेंस इज़ यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सो बेसिकली इस पूरा चैप्टर इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ना है और एक्चुअली में होता क्या है इसके बारे में, तो वही हम घूम फिर के हर बात में वही आ जाता है. इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन मैंने थोड़ा सा पहले ही डिस्कस कर लिया. तो होता क्या है? अर्थ विल गेट रिकॉर्डेड एट द साइज्मोग्राफ लोकेटेड एट द फार ऑफ लोकेशंस. हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड. सच जोन्स आर कॉल्ड शैडो जोन्स. तो अर्थक्वेक जब आता है तो सरफेस के हम बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत हर कंट्री, हर रिसर्च लैब के पास साइज्मोग्राफ होता है और वो उन वेव्स को रिकॉर्ड करता है. उनकी रीडिंग डिफरेंट होती है. बेसिकली जो पास में होगा उसकी रीडिंग ज़्यादा होगी, जो बहुत दूर होगा उसकी कम होगी. लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिनमें साइज्मोग्राफ में कोई रीडिंग नहीं आती है और उस जोन को हम शैडो जोन कहते हैं, राइट.
और ये अलग अलग वेव के लिए अलग अलग एंगल पे होता है। तो कहीं ऐसा जोन होगा जहाँ पे पी वेव सिर्फ नहीं आ रही है, और कहीं पे ऐसा होगा जहाँ एस वेव नहीं आ रही है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इसको एक डायग्राम जो है आगे इससे समझा रहा हूँ। या तो लेट्स से दिस पॉइंट, दिस ब्लैक पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ द earthquake, right? So you can see this zone, the darker area is called P wave shadow zone. What does that mean? That इस एरिया में इस earthquake से जो waves रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पे वो P waves रिकॉर्ड नहीं होंगी, राइट? यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रही हैं, बट यहाँ नहीं हो रही हैं। और सिमिलरली इधर तो 103 से 142 एंगल तक हमें P वेव का शैडो जोन मिलता है, राइट? और एस वेव के लिए ये एंगल 103 है, तो 103 एंगल के आगे हमें एस का शैडो जोन मिलता है। अब इसे मिलता क्यों है, ये एस का तो हम समझ गए। सो एस वेव क्या होती है? ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड, ओनली सॉलिड, ठीक है। और इससे हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जब वेव्स हर तरफ निकल रही हैं, लेकिन कुछ वेव एक ऐसे पार्ट से होके जा रही हैं जो कि लिक्विड है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। सो दैट्स वाई यहाँ तक पहुँच पा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ये टेक्निकल पार्ट जानने की ज़रूरत नहीं, बट जान लो हो क्या रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डाइवर्ट होती है, और उस डाइवर्जन के कारण हो क्या रहा है कि बेसिकली जो वेव्स हैं ये डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, और एक ऐसा जोन पड़ रहा है जहाँ पे पी वेव पहुँच नहीं पा रही है, राइट? तो ये दो शैडो जोन्स होते हैं। मेरा ये कहना होगा कि आप लोग ये रट लो, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं पूछा, लास्ट 10 साल में मुझे नहीं याद है कि पूछा गया, बट पूछ सकते हैं। इस बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पूछ लिया था, जो कि लास्ट 10 ईयर में कभी नहीं पूछा गया। तो अगर जो लोग प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वुड एडवाइज देम टू मेमोराइज एवरी क्वेश्चन ऑफ प्री इन लास्ट 10 ईयर, बिकॉज आई हैव नो, मुझे हर एक क्वेश्चन याद नहीं है, बट वेन एवर आई सी द टॉपिक आई नो कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट 5-6 साल में कब पूछा गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि मतलब क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या होती है और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, राइट? ओके, मेजरिंग अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक बेसिकली इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट earthquake events are scaled either according to magnitude or intensity. सो दो तरीके से नापा जा सकता है। बेसिकली एक मैग्नीट्यूड होता है और एक इंटेंसिटी होती है। तो बेसिकली इन दोनों का मतलब ये है कि एक मैग्नीट्यूड क्या करता है कि एनर्जी रिलीज नापता है कि उस अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और इंटेंसिटी क्या होता है कि कितना आई वुड से डैमेज कर सकता है ये अर्थक्वेक, वो नापता है, राइट? तो मैग्नीट्यूड्स के द मैग्नीट्यूड इज रिक्टर स्केल बेसिकली मैग्नीट्यूड नापता है, और जो ये एक और है ये मर्कैली स्केल इज़ फॉर इंटेंसिटी। सो ऑल दिस जो होती है ना स्केल, ये लॉगरिथमिक स्केल होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे हमने कई बार देखा होगा रिक्टर स्केल पर 4, 5, 6 और रेयर केसेस में 7 तक अर्थक्वेक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कहीं 4 का अर्थक्वेक आया और 5 का आया तो इसका मतलब ये नहीं कि 20% ज़्यादा बढ़ गया अर्थक्वेक, नहीं, दिस इज़ अ 10 फोल्ड इंक्रीज। सो एनी लाइक एक रिक्टर स्केल पे एक पॉइंट आगे जाने में 10 टाइम्स द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। सो रिक्टर 6 वाला जो अर्थक्वेक है वो 10 गुना बड़ा होता है रिक्टर 5 वाले स्केल से। अगेन द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपको पढ़ लेना है बस, नॉट सो कंसेप्चुअल। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस। ओके, मैंने इसमें लिखा नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉन्टिनेंटल या टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आता है, क्यों आता है। सो यहाँ पे वैसे भी डिस्कस नहीं किया गया, बस 1-2 इंसिडेंट बताए गए हैं अर्थक्वेक के, जैसे उरी अर्थक्वेक। और तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उरी में ही क्यों आ रहा है अर्थक्वेक, मतलब जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा है, नेपाल में क्यों आ रहा है, और कहीं क्यों नहीं आ रहा है।
ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो अभी तक हमने पढ़ा क्या? अभी तक हमने सिर्फ जाना कि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, राइट। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट आता है क्रस्ट। क्रस्ट इज व्हाट it is the outermost solid part of the earth. It is brittle in nature and the thickness of the crust varies under oceanic and continental areas. So crust नाम से आपको पता चल रहा है कि it is brittle. First, it is outermost. Second, it is brittle in nature. These two properties are very useful. ठीक है, and the thickness of the crust varies from oceanic. So oceanic crust is thinner as compared to the continental crust. It is important point. And the mean thickness of the oceanic crust is 5 km and whereas that of continental crust is 30 km. And the continental crust is thicker in the areas of major mountain chain. तो कहीं कहीं पे जहाँ माउंटेन भी होता है ऊपर, तो वहाँ क्रस्ट की थिकनेस 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है, और ओशन में वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर होती है। और ये इसका रीज़न हम नेक्स्ट चैप्टर में जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इट्स वेरी ईजी बट आई हैव टू गो थ्रू लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। And it is made up of heavier rocks having density of 3 gram per centimeter cube. This type of rocks are found in oceanic crust is basalt and the mean density of this areas of oceanic crust is 2.7. Okay, so basically यहाँ इसका मतलब क्या है? The crust की एवरेज डेंसिटी अराउंड 2.7 होती है और ओशनिक क्रस्ट की 2.7 होती है बेस, दैट्स इट। या तो ओवरऑल क्रस्ट की 3 होती है और ओशनिक क्रस्ट की 2.7 होती है, दैट्स इट। अगेन सो अभी तक हमने क्या देखा? तो क्रस्ट होती है, ये सबसे पतली लेयर होती है। रिमेंबर अर्थ का रेडियस क्या होता है? ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। इसमें से अर्थ क्रस्ट अराउंड 30 किलोमीटर होती है, सो 0.5%, राइट। अगेन इट्स ब्रिटल इन नेचर, इट्स थिन, इट्स आउटरमोस्ट। Moving on, mantle. The portion interior beyond the crust is called mantle. The mantle exists up to the Mohos discontinued to a depth of 2900 किलोमीटर। इसमें मतलब क्या है? यहाँ पे देखते हैं, ये सरफेस हो गई, ये मोहोस डिसकंटिन्यूटी हो गई, और ये बेसिकली मैंटल कोर बाउंड्री। ये मोहोस डिसकंटिन्यूटी एक ऐसा पॉइंट होता है। सी डिसकंटिन्यूटी किसी भी चीज़ को तब बोलते हैं जब वहाँ पे एक रैपिडली कोई भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही होती हैं, राइट। तो क्रस्ट यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर एक डिसकंटिन्यूटी आती है जो कि एक लेयर होती है जहाँ से हम ये मानने लगते हैं कि यहाँ से मैंटल शुरू हो गया, राइट। दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। और ये पूरी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक होती है। सो मैंटल इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ। सी क्रस्ट कितना था? क्रस्ट वॉज अराउंड 30 किलोमीटर, राइट, बट मैंटल अप टू 2900 किलोमीटर। सो ह्यूज, इट्स ह्यूज। द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ मैंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। तो इसका जो अपर पोर्शन होता है, मैंटल जो यहाँ से शुरू हो रही है, इसका जो अपर पोर्शन होता है इसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। इसे एस्थेनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये प्लास्टिक होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है और इसमें मैग्मा होता है। या इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे अप टू सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। इट्स डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ क्रस्ट and the crust and the upper portion of the mantle is called lithosphere. Its thickness ranges from 10 to 200 km. The lower mantle extends beyond the asthenosphere. It is in solid state. Okay, तो इसकी एवरेज डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो कि इट्स स्लाइटली मोर देन दी क्रस्ट, राइट। और ये सेंस भी बनता है ना, कोई भी चीज़ जो ऊपर होती है वो लेस डेंस होती है और नीचे वाली डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसमें जो मैंटल होता है ना, इसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो उसको हम जैसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। वो काइंड ऑफ फ्लूइड होता है और वो प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर क्रस्ट बेसिकली फिसल रही होती है, तैर रही होती है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो एकदम से सॉलिड होता है। लेट्स सी यहाँ पे। सो क्रस्ट, ये क्रस्ट होती है, ठीक है, ये क्रस्ट है, और ये हो गया एस्थेनोस्फेयर, और ये एस्थेनोस्फेयर हुआ, और ये यहाँ से पूरा मैंटल होता है, ठीक है, अप टू 2900 किलोमीटर।
और उसके नीचे कोर। और कोर का भी जो जो मैंटल के नीचे से अप टू होल रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ कोर होता है। और कोर के भी दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट जो कोर का होता है वो लिक्विड होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है। ऐसा क्यों? सो होता क्या है कि एज हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बट प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो मटेरियल है हमारा अर्थ का, जो टेम्परेचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है, राइट। किसी भी मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होगा अगर टेम्परेचर, तो वो चीज़ लिक्विड स्टेट में होगी। बट एज हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाता है, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है बट यहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर इज़ हाई हेयर। तो यहाँ पे इवन दो टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन जो अर्थ है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, दैट्स द पॉइंट। Okay, now read the core. As indicated earlier, the earthquake wave velocities help in understanding the existence of core of the earth. The core mantle boundary is located at the depth of 2900 km. The outer core is in liquid state while the inner core is in solid state. Or the density of the material at the mantle core of the boundary is about 5 gram per centimeter cube, and at the center it is 13 gram per centimeter cube. तो हमने देखा 3 से शुरू किया था क्रस्ट का, 3.5 होता है स्टेनोस्फेयर का, और ये मतलब और ये कोर तक पहुँचते पहुँचते 5 और 13 तक पहुँच गया, राइट। डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है बेसिकली। अगेन ये हो गया। तो हमने अर्थ क्रस्ट की लेयर्स पढ़ ली, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये पढ़ ली, राइट। प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा? बेसिकली उनका स्टेट क्या होता है, सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, और इनकी डेंसिटी क्या होती है। बेसिकली यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमने जाना कि जो मैग्मा होता है वो एस्थेनोस्फेयर से आता है, right? Asthenosphere is the upper part of the mantle. Upper part of the mantle is fluid, but the lower part of the mantle is solid, and the upper part of the core is liquid, and the lower part of the core is solid. And it is mainly constituted by nickel and iron. So again हमने पढ़ा था कि magnetic property is important, and that's why it is important. These both are ferromagnetic, और इनसे हमें basically जो अर्थ की जो magnetic properties होती हैं वो उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। ओके, नाउ हमने पढ़ा था कि लावा इज़ ए गुड डायरेक्ट सोर्स ऑफ द अर्थ। तो हमें वोल्केनोज और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। सो व्हाट इज़ वोल्केनो? तो जब भी लावा कहाँ होता है? एस्थेनोस्फेयर में, क्रस्ट के नीचे, राइट। तो जब भी वो सरफेस में आता है, इन व्हिचएवर फॉर्म इट इज़ कमिंग, इट इज़ कॉल्ड वोल्केनो। सो वोल्केनो इज़ द प्लेस जहाँ पे इंटरनल लावा सरफेस में आता है, दैट्स इट। सो यहाँ पे कुछ टाइप है वोल्केनो के, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बस, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि इंडिया में भी वोल्केनो का इफ़ेक्ट होता है, वो इंडियन ज्योग्राफी में आएगा बट स्टिल इम्पोर्टेंट। शील्ड वोल्केनो, ओके, व्हाई इज़ इट कॉल्ड शील्ड वोल्केनो? बिकॉज इट इज़ शेप्ड लाइक अ शील्ड। हैव यू सीन शील्ड इन द मूवीज? इट्स लाइक दिस काइंड, you know, there's a barely a slope, this is a circular and barely a slope, it is a shield volcano. Barring basalt flow, what is basalt flow? नेक्स्ट बताऊंगा। द शील्ड वोल्केनो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज। ये इसकी एरिया मैंने इसीलिए इसको थोड़ा चपटा बनाया और ये बहुत बड़ा बनाया, सो इट कैन बी लाइक 50 किलोमीटर to 100 किलोमीटर बिग। ये जो हवाईयन वोल्केनोज हैं, हवाईयन वोल्केनोज, सो हवाई आपको पता होगा, दिस इज़ ए लाइक आइलैंड स्टेट ऑफ द USA, राइट। जैसे हमारा अंडमान निकोबार है ना, दिस इज़ मेड ऑफ अ वोल्केनोज, बट हवाई का वोल्केनो अलग है और हमारा अंडमान निकोबार का अलग है। विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। मेरे पास शायद फ़ोटो भी होगी। या शील्ड वोल्केनो, ये देखो, ये हवाई का ही वोल्केनो, देखो इसका स्लोप कितना है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही बड़े एरिया में फैला है। यहाँ से स्लोप है, लेट मी पॉइंट द लेज़र, ये यहाँ से यहाँ तक बहुत ही स्टीप है, मतलब स्टीप नहीं कह सकता, बहुत ही जिसका स्लोप है बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। देखो स्लोप बहुत ज़्यादा कम है। सो इट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द शील्ड वोल्केनो, क्योंकि इसी के हिसाब से इसका नेम है। ओके, तो इसका जिसमें जो लावा होता है बेसिकली, दिस इज़ these volcanoes are mainly made of basalt, a type of lava which is very fluid when erupted. इससे मतलब क्या? सो बेसिकली इसमें जो लावा होता है वो बेसॉल्ट टाइप का लावा होता है। बेसॉल्ट मतलब एक बेसिक टाइप का लावा होता है जिसमें लेस सिलिका,
सो मोर फ्लूइड। तो कोई भी चीज़ जब फ्लूइड ज़्यादा नहीं होगी ना, बेसिकली पानी की तरह होगी। पानी बहुत कम विस्कस होता है, सॉरी इट्स अ वेरी फ्लूइड बट वेरी लेस विस्कस। कोई भी चीज़ जब विस्कस नहीं होगी ना, वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है। सोचिए आप एक रूम में आप पानी गिराते हैं ना, वो पूरे रूम में फैल सकता है, बट एक रूम में आप एक जगह पे आप शहद गिराइए, वो बहुत धीरे या बहुत टाइम के बाद फैलेगी और आप एक ही जगह लिमिटेड रहेगी। सो वही चीज़ समझा रहे हैं। सो दीज वोल्केनोज, ये जो होते हैं ना वोल्केनो, ये रेयरली एक्सप्लोजिव होते हैं। जनरली आपने मतलब जब भी वोल्केनो सुना होगा, एक्सप्लोजन सुना होगा, बट ओनली अ सर्टेन काइंड ऑफ वोल्केनो हैज़ एक्सप्लोजन। तो इसमें इसमें एक्सप्लोजन तभी होता है जब इसमें वाटर ट्रैप हो जाता है। क्या होता है ना, गर्म लावा में अगर बीच में वाटर ट्रैप हो गया कहीं भी, ग्राउंड वाटर लेट्स से, तो वो बेसिकली वेपर में कन्वर्ट होता है एंड दैट कॉजेज एक्सप्लोजन, नॉट द वोल्केनो इटसेल्फ। और इसमें एक टॉप में एक कोन होता है जिसे हम सिंडर कोन कहते हैं, दैट्स इट। सिंडर कोन क्या होता है, लेट मी शो यू इन द डायग्राम इफ आई हैव, या यहाँ से चेम्बर से सेंट्रल वेंट से मैग्मा आता है, और ये जो कोन दिख रहा है ना, ये कोन ऐसा होता है ना, ये कोन, ये चीज़ जो यहाँ दिख रही है, इसे सिंडर कोन कहते हैं, दैट्स इट। Composite volcano. Okay, these volcanoes are characterized by eruption of cooler and more viscous lavas than basalt. These volcanoes often result in explosive eruption. Along with lava, large quantity of pyroclastic material, ashes find their way to the ground. Okay, so होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें ज़्यादा फ्लूइड या लेस विस्कस होती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं, बट अगर इन केस जो लावा है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस है, बेसिकली वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है, एक ही जगह पे इकट्ठा होता रहता है। लेट्स से यहाँ पे अगर कोई लिक्विड यहाँ भरा हुआ है जो कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि वो विस्कस है ज़्यादा, तो दिस विल कॉज एन एक्सप्लोजन, राइट। और उस एक्सप्लोजन से जो भी पायरोक्लास्टिक डेब्री होती है, पायरोक्लास्टिक डेब्री मीन्स वेरियस अदर मटेरियल्स दैट कॉज एक्सप्लोजन, दैट कॉज फायर, they have like dust particles, they have sulfur, they have like all kinds of materials, right, whatever was in the interior of the earth, वो निकलता है। एंड what it does is, see, जब वोल्केनो फटा, इससे बहुत बड़ा वो निकलेगा, क्या निकलेगा, एक एशेस की लेयर निकलती है, और वो एशेस की लेयर दूर दूर तक डिपॉजिट हो जाती है। तो बेसिकली वहाँ के लोगों को उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ लेयर जैसे स्नो की लेयर होती है ना, उसी तरह ऐश की लेयर हो जाती है। और होता क्या है कि वही वोल्केनो कुछ सालों बाद, मे बी इट कैन बी 1000 साल, फिर से फटता है, और फिर वहाँ पे लावा की लेयर आ जाती है। तो एक लेयर ऐश की आती है, एक वोल्केनो की लावा की आती है, और इसके कारण जो एंड रिजल्ट होता है कि एक लैंडफॉर्म बनता है जिसमें कंपोजिट होता है, बेसिकली उसमें कई चीज़ों की लेयर होती हैं, है ना। दिस मेक्स अपीयर एज ए कंपोजिट वोल्केनो। लेट्स सी, इसका डायग्राम देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इसमें आपको लेयर्स दिख रही हैं ना, लेट्स लेज़र आ जाए, ये देखो, ये जो लेयर है, तो एक लेयर वोल्केनो की हो गई, एक उसके एशेस की हो गई, फिर एक वोल्केनो की लावा की हो गई, फिर एक उसके एशेस की हो गई। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लैंडफॉर्म जो कंपोजिट वोल्केनो से बनता है। ओके, कैल्डेरा। सो होता क्या है, जब भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वो होता है, लावा होता है, वो क्यों होता है हमें पता है, जब भी विस्कोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत दूर तक फैल नहीं सकता, तो उसमें एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है। एक्सप्लोजन कब होता है, जब प्रेशर बनता है। प्रेशर कब बनता है, जब चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं। तो एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा होता है कि वो उस बेसिकली उस स्ट्रक्चर को उखाड़ देता है। सपोज़ यहाँ पे लावा कलेक्ट हो गया, ठीक है, और नीचे से लावा आ रहा है, तो जब एक्सप्लोजन होगा तो इतना ज़ोर से अगर एक्सप्लोजन हो कि वो इस पूरे माउंटेन को, इस जो स्ट्रक्चर है ये, उसको उखाड़ दे, और इसकी जगह बचे क्या, इसकी जगह बस एक ऐसे ही उसका बेस बचे, बस ऐसा बचे। जो भी इसके ऊपर था वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हुआ। तो बेसिकली एक डिप्रेशन बचेगा, ऐसा कटोरे जैसा, और उसे हम कैल्डेरा कहते हैं। दीज आर डिप्रेशंस। और जनरली क्या होता है, फिर इसके बाद इनमें पानी गिर जाता है, तो ये कैल्डेरा लेक बन जाती हैं कुछ दिन बाद, है ना। बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लेक्स होती हैं वर्ल्ड में, आप सर्च करेंगे कैल्डेरा लेक, एंड दीज आर ड्यू टू दीज काइंड ऑफ वोल्केनोज। ओके, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। देखो अब इस वर्ड को देखते हैं, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। फ्लड, सो बेसिकली ड्यू, क्योंकि जो बेसॉल्ट लावा होता है, दिस इज़ वेरी लेस विस्कस एंड वेरी फ्लूइड। तो होता क्या है कि जैसे पानी होता है ना फ्लड में, कि नदियों से बस बहता जाता है, दूर तक बहता जाता है एक पतली लेयर बना के, उसी तरह ये जो लावा होता है
ये एक्सप्लोजिव नहीं होता, ये बस ऐसे पानी की तरफ बहता रहता है धीरे 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 धीरे, मतलब ऐसा बहता रहता है कि अगर आप सामने देखेंगे ना तो आपको मतलब कोई थ्रेट नहीं है, आप बस उससे चल के भी उसको पीछे छोड़ सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ लावा है ना। और ये बहुत, चूँकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है तो ये बहुत दूर तक भी जा सकता है, तो इसीलिए एक प्रोविंसेस बनाता है बेसिकली, बहुत लार्ज लार्ज पार्ट ऑफ एरिया, तो ये थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक भी फैल सकता है। सो डेक्कन ट्रैप इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो महाराष्ट्र में जो हम जैसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, दिट इज़ ड्यू टू दैट काइंड ऑफ फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। तो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये बहुत ही कॉमन होता है इस टाइप का, ये ऐसा होता है। सो शुरू में ये ऐसा दिखता है, तो जब हमारा महाराष्ट्र भी कभी ऐसा दिखता रहा होगा बेसिकली 50 मिलियन ईयर्स अगो, बट नाउ ये जो वेदरिंग हो चुकी है, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, उसके कारण यहाँ ब्लैक सॉइल आ जाती है, तो ये नॉर्मल दिखने लगता है, राइट। और वर्ल्ड में ये देखिए इतने सारे बेसिकली फ्लड बेसॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपना डेक्कन है, राइट, यहाँ पे वो नहीं हुई है, यहाँ पे मतलब दुनिया में हर अलग अलग जगह है। ओके वोल्केनो लैंडफॉर्म। तो अभी हमने बेसिकली मैग्मा और लावा के बारे में पढ़ा एंड वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, उसके टाइप। अब ये पढ़ते हैं कि वोल्केनो के लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। लैंडफॉर्म क्या होता है कि जो भी अर्थ सरफेस में जो आपको दिखता है ना, कोई भी एक लैंड का टाइप जो, तो उसे लैंडफॉर्म कह देते हैं, जो कि हम स्टडी करते हैं बेसिकली। तो इट कैन बी प्लेन, इट कैन बी माउंटेन, इट कैन बी वैली, इट कैन बी एनीथिंग। सो अभी जो वोल्केनो से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो पढ़ रहा है। सो इंट्रूसिव फॉर्म मतलब सी वोल्केनो कहाँ से आता है, सॉरी, जो मैग्मा होता है वो मेंटल से आता है ना, तो मेंटल से वो क्रस्ट तक आता है, तो उसके बीच में वो जब सरफेस में नहीं आया है तब भी कोई लैंडफॉर्म बना सकता है, उसे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। और जो सरफेस के ऊपर आके कुछ बनाता है उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, लावा दैट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनो eruption ऑन कूलिंग डेवलप्स igneous रॉक्स, ठीक है। तो igneous रॉक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट igneous रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कि लावा के कूलिंग से बनती हैं, ठीक है। कूलिंग में टेक प्लेस ईदर ऑन रीचिंग ऑन द सरफेस और ऑल्सो वाइल लावा इज स्टिल ऑन द क्रस्टल पोर्शन, राइट। या तो वो लावा जो है वो सरफेस में आके कूल होके कोई भी लैंडफॉर्म बनाएगा, या फिर वो कभी मतलब बिना सरफेस में आए ही कोई लैंडफॉर्म बना देगा, ठीक है। वो दोनों पॉसिबल हैं। तो अगर वो लैंडफॉर्म सरफेस के अंदर बन रहा है तो उसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, अगर वो बाहर बन रहा है तो उसे वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, ये बैथोलिथ है। बैथोलिथ क्या होते हैं, ये लार्ज पोर्शन ऑफ लावा कलेक्शन होते हैं ऐसे। ये आप देख रहे हैं, आप इंटरनल होंगे, है ना, ये सरफेस है, सरफेस के नीचे है ये, तो ये बैथोलिथ होते हैं। तो ये इंट्रूसिव होते हैं, जो कि ऊपर हमने देखा था। ये लैकोलिथ होते हैं, ये दो लेयर के बीच में फंसे होते हैं, और ये कॉन्वेक्स शेप इनका होता है। और ये जो डाइक होते हैं, सो डाइक क्या होते हैं, एक वर्टिकल लैंडफॉर्म होते हैं, ऐसे होते हैं लावा के। यहाँ पे ट्रैप है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये ट्रैप है बस। और सिल्स क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। इतना जानने की ज़रूरत है बस। सो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो डाइक है, लेट्स से यहाँ की एरिया इरोड हो जाए, सो ये डाइक्स ना कभी कभी माउंटेन की तरह दिखते हैं सरफेस में, लेकिन तब वो माउंटेन हो गए, लेकिन ये अभी ये डाइक्स होते हैं। बाकी हमने सिंडर कोन पढ़ लिया, लावा प्लेट्यू पता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक दैट इज़ इट। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो थोड़ा आपने देखा होगा मैं थोड़ा अटक रहा था। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो एंड विच विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारी जो थ्योरीज आएंगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरीज, ऑल दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।